Hello, good evening, Rohit. Am I audible? Good. Yes, sir. You're audible. Okay, Rohit. So you're going to be giving the interview in the English medium? Yes, sir. Okay, Then bilingual, most probably bilingual. okay. So what we're going to be doing is that 15 to 20 minutes, I will be asking you questions, and then 5 to Okay, 10 sir. minutes to feedback, and then you can ask me any questions that you find. Okay, sir. So yes, Good Rohit, evening, sir. good evening. So Rohit, I was going through your DAF. I see that you're from Unna district, but now Yes, sir. you. So, what difference do you observe between the two districts in terms of their developments and their challenges? Sir, the Unna is the bordering state and it shares border with the Punjab. So the industrial development and due to this plain topography, the industrial development in Unna and its adjoining area is very high compared to Shimla. Whereas Shimla is the urban area where administrative offices and legislative assembly is present. So this is the major difference between the Shimla and Unna in terms of development. Okay. Rohit, I see that your sister is also in the government service. Your father was also in the government service. So, with already two government servants in your family, what additional perspective will you bring to the services? Yes, sir, as my sister is working as a clerk and my father is working as a senior assistant. So if I will be selected in the government services, then I am a more empathetic person and I understand the problems of people very well. So I will try to give my best and understand the problem of people who will come to me, and I will try to help them as per my possibilities, as per my capabilities. So sir, I think I give a fresh perspective of my academic background of zoology, which has taught me about how something happened, what is the reason for that, and why something happened. For example, we are taking oxygen, and why we are taking oxygen. Zoology taught me that oxygen is required for cellular respiration. Then how it happened, and what will be the effect of the cellular respiration. So similarly, in administration, I will apply these things, and it will give me an opportunity that why the problem happened, what are the solutions, how this thing will be happen. Okay. I see that you scored 81% in 10th and then 77% in 12th and 70% in BSc. It is a declining trend in your academic performance. So, what is the reason behind it? And then in the services, will you go down even further? So I think that gradually I am more engaged in extracurricular activities, or I have some friends which I do like trekking activities or more in towards other exploring different other fields. But due to that, I think I don't focus on my studies that much. But after that, I understand the importance of education, or do I will good definitely I will good in services also, sir, if I get an opportunity. Okay. So, you are also giving the UPSC exam as well. Yes, sir. So, if you get selected in HS, will you give the UPSC exam again? Yes, sir. As I respect both the posts equally, but as UPSC gave me a more national exposure and give me opportunity to learn different things. So I will definitely try, and again I will come to the state and serve with a more better resources and more better knowledge and my as per my capabilities at that time, sir. But if you become IRS via the UPSC and HAS executive in this exam, which one will you choose? Sir, I will be more inclined toward the HS because I feel that I will be doing more well in developmental work and connecting the people more, as I feel that I am more empathetic and easily connect to the people and understanding their problem. And as an executive in HS, for example, like in HS, it gives me direct opportunity to connect with people, like in the cases of disaster management and in implementing some welfare schemes. So I think I will choose the HS. Okay. I had another doubt, Rohit, that because you will be serving as an officer, in the Himachal government if you get selected, and how will you find time to prepare for UPSC? Sir, as right now, I'm not aware much how much workload is on me. So if the opportunity and time permits, then I will definitely try. Otherwise, I will fulfill my duty as per the government mandate.
and I will not compromise with the quality and giving my best to the services. Okay. So you write poems also, है ना? What Yes, theme sir. we write on? Sir, I write the poems mainly when I feel something towards the see something society or which more means more. So can I say it in Hindi? Yeah, sure, sure, Rohit, please. सर जब कोई मुझे कुछ ऐसा लगता है जो मुझे इमोशनली फील कराता है या इमोशनली कनेक्ट होता हूँ जिस चीज के साथ, मैं उसके बारे में ज्यादा लिखना पसंद करता हूँ। पर्टिकुलरली कोई थीम या पर्टिकुलरली कोई टॉपिक सिलेक्टेड नहीं करता पहले, पर जो चीज मुझे फील होती है मैं उस पे कुछ लाइंस लिख लेता हूँ सर। ओके रोहित, बट आजकल देखो सोशल मीडिया है ना? आप अपना कोई आपने चैनल भी बनाया हुआ है अपने पोइट्री का कोई? नो सर, नॉट राइट। अच्छा, वैसे आपको पता है कई लोग है ना सोशल मीडिया पे पोइट्री वगैरह और चीजें शेयर करते हैं, बट आपको क्या लगता है कि वो मतलब ठीक है सोशल मीडिया की खराब है सोशल मीडिया वैसे? सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सही है, ये लोगों के बीच एक कनेक्शन बिल्ड करने का काम करता है। और एट प्रेजेंट टाइम वी आल्सो हैव अपॉर्चुनिटी टू अर्न फ्रॉम सोशल मीडिया एज अ लाइव कॉन्सर्ट्स and by streaming the videos on YouTube. So it can help to generate the livelihood also for those people who, and it give an opportunity to show their talent to the more people by connecting on social media. बट रोहित, जैसे हम देखते हैं नॉर्मली आजकल की किसी भी इशू पे पब्लिक जो है डिवाइडेड ही रहती है सोशल मीडिया पे, है ना? सो जैसे आप अगर एक ऑफिसर बनते हैं तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया पे आप कहाँ तक चीज़ों को शेयर कर सकते हो, अपने व्यूज़ को कहाँ पे आपको लाइन लगा देनी चाहिए, वो कैसे पता चलेगा आपको? सर सर मेरा मानना है कि अगर कुछ चीजें जो या कॉन्स्टिट्यूशन लॉ या कुछ ऐसे जो सोसाइटी के पैरामीटर्स हैं, अब सोसाइटी के पैरामीटर्स चेंज भी हो सकते हैं विद इन अ सोसाइटी ऑल्सो, सो इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द लॉ और द गाइडलाइंस वी शुड बी प्रिपेयर्ड। एंड इफ दैट सम कंटेंट विल गो फार बिहाइंड दैट, देन सर दैट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। ओके। सो रोहित, उन्ना शेयर्स बॉर्डर विद पंजाब, है ना? यस सो सर। थिंक आर द मेजर challenges and are there any border disputes going on? सर कैन आई टेक सम टाइम? Yeah, sure, sure. सर विद पंजाब आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एनी बॉर्डर dispute right now, but I will definitely look into this, sir. Okay, so what are the challenges? Any So challenge? the first challenge is drug abuse. Okay. Second is drug abuse. Second is illegal sand mining. These two are the major issues which is happening due to the sharing of the border. And both Punjab and Himachal Pradesh administration are collectively work on this to prevent the illegal mining and preventing the drug abuse problem. Okay. So there is another big issue that is happening in Shimla, which is urbanization. Do you think that Shimla should keep on urbanizing itself? So as according to the carrying capacity, every area has some limited carrying capacity. So Shimla has already achieved its similar carrying capacity, and so by taking care of this, government has made a plan, Shimla Development Plan in 2041, under which government divided the area into core area, non-core area, and green belt area. And government is focusing to creating up magnet towns or counter cities outside on the periphery of the boundary. As recently, a Jathia Devi town project is formalized by the government. So government is also trying to shift in the and relocating the offices from the Shimla to decongest the Shimla. Okay. Rohit, also in the upper Shimla area and Kullu area, apple cultivation in Kinnaur, etc., is very popular and is in high demand. But the farmers have been complaining for some time now. Do you know why they are complaining? What is the issue? So the issue is for the climate change, due to which for one of the issues is climate change, due to which the productivity of crop is not throughout the year same. Second, sir, the prices due to the market failures. Second problem is the market failure due to the exploitation by the middlemen. Third is in during the disaster, it will be difficult to take the crop to the market. So these are, I think, these are the major issues on which the farmers have. But the issues that you mentioned around, I think more than half of them are just natural causes only. And the farmer should not be complaining about them because these are risks of the business. Disaster arises, or perhaps. So only two reasons you gave.
about the exploitation by the. So, so in my opinion, these are the natural reasons, but the duty of administration or government is to provide relief and to provide the adequate support in case of natural calamities, and creating a robust infrastructure so that the apple crop should be timely timely come to the market. And search second for the climate change, government should support the research activities to support the crops in the upper area. Okay. So Rohit, you are the SDM, है ना, in your subdivision. And suddenly you wake up one morning, you knew that floods were going to come, but you predicted that it would be near the periphery only, near the riverside only. But when you woke up in the morning in your guest house, you see that water has reached up to the level of the bed. Now, what are the first immediate measures that you will take for the flood situation? So first of all, as an SDM, I will I will imply the Disaster Management Act, and after that I call the police, fire services, and the local officials like Patwari and Kanungo. And after that I tell the situation to the Deputy Commissioner of an area. And so secondly, I will immediately imply the rescue and relief operations and establishing the medical camps for the people, medical and shelters, and imply food and provide food and essential medicines. And along with that, the counseling and other sessions should be done for the people who are losing their lives. And along with that, law and order maintenance is also an important aspect in case of any natural disaster. So it should also be taken care of. And along after, when the condition becomes stabilized, then I will assess the damage of an area. And along with that, after assessing the damage, I will document all the situation and give it to the higher authority for so that the adequate relief should be provided to the people. Okay. Rohit, which subdivision of Unna has the new bulk drug park? It's Haroli in Haroli. Okay. So the bulk drug park, do you think that it is a good thing for the district Unna, or do you think it is a bad thing? Because although it is giving employment, but it is also causing a lot of pollution in the nearby areas. So what do you think? Yes, sir, as every project has some pros and cons. So similarly, the bulk drug project has some cons, as you said, that it can cause pollution problem. And its pros includes that as India is dependent on the active pharmaceutical ingredients on China. So on the one side, it will improve that India's production. And in Himachal Pradesh, is known as the pharmaceutical hub. So it will help to improve the competitiveness of Himachal drug sector. And besides employment for a local area, it also generates like for cafes, rental income to the people of local area and improve the infrastructure development in local area. So I think by all this, it can be a good project and it will solve the many issues in future if we can take it. We can take care of all the problems like pollution, water depletion sustainably. ओके. सो रोहित, आपका सुमटी से है ना, शिमला में? सो हाँ आपने जी वहाँ सर. देखा होगा कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होते हैं, है ना? लेपर्ड के साथ हो जाता है, कभी कभी मंकी वेनेस हो जाता है। तो आप इसके लिए, आप जैसे आपके एरिया में ऐसा हो गया, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल द रीजन जो भी होंगे मतलब ये एक सर्वे कंडक्ट करेंगे कि एनिमल और मैन के ह्यूमन के बीच कॉन्फ्लिक्ट किस रीजन से हो रहा है. मे बी एनिमल्स का शेल्टर डिस्ट्रॉय हो गया है जिसकी वजह से वो ह्यूमन के हैबिटेशन के एरिया में आ रहे हैं या एनक्रोचमेंट हो रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंडक्ट अ सर्वे फॉर दैट. आफ्टर दैट अ प्रॉपर एनिमल बोर्ड के साथ कॉन्टेक्ट करके सर उनके लिए प्रॉपर शेल्टर प्रोवाइड किया जाएगा और उनको वहां से रिहेबिलिटेट किया जाए कि दूसरे लोकेशन पर जहाँ पर उनको नेचुरल एनवायरनमेंट में ग्रो करने का मौका मिले इकोलॉजिकली जो सस्टेनेबल भी होगा सर. ओके. सो रोहित, फाइनल क्वेश्चन, दैट अगर आपका एचएएस में नहीं होता तो इसके बाद आपका क्या फ्यूचर प्लान है? So first of all, I'm quite hopeful that this time I will select. And if unfortunately I will not, then I will definitely try again with a better preparation. However, sir, always believe that there should be some an alternative productive plan. So I work to intend on a small dairy enterprise in future if I will not selected as an HAS officer in a dairy enterprise and their allied farming in my village itself, sir. ओके रोहित, थैंक यू, योर इंटरव्यू इज ओवर. अब फीडबैक Yes, sir. करते हैं ना, ठीक है? तो रोहित यार, सबसे पहले ठीक है, उन्ना शिमला अच्छे से कवर करना है,
है ना, जो भी ठीक इश्यूज है है, सर। बॉर्डर इश्यूज जो हैं पंजाब के साथ, वो देख लेना कि क्या क्या है। अभी अनंतपुर साहब में गुरु तेग बहादुर जी की 350th एनिवर्सरी हुई थी, तो वो आपको ढंग से उसको पढ़ लेना, क्योंकि ऊना के साथ ही अनंतपुर साहब लगता है ना। तो वो बहुत बहुत सारी ऊना से भी लोग गए थे वहां पे। एक यार, दूसरा कि अपना थोड़ा ना कॉन्फिडेंस और रखो इंटरव्यू में, है ना, क्योंकि आपको पता है आंसर आते हैं, चीजें आती हैं। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और रखो, है ना। और सबसे ज्यादा कि क्यों यूपी इसमें एचएएस में आपने आना है, तो उसका आंसर थोड़ा और अपना बेटर करो। ये नहीं सिर्फ कि भाई एम्पैथी है मेरे में तो इसलिए मैं अच्छा काम करूंगा इसलिए आऊंगा, नहीं। कोई कॉन्क्रीट सा रीजन सोचो, कोई स्टोरी सोचो बैकग्राउंड, जिसने आपको इंस्पायर करा कि भाई मेरे को इसमें आना है ना। थोड़ा सा उनको इंटरलिंक करके बताओगे तब उनको ज्यादा अच्छा लगेगा सुनने में, है ना। तो वो वैसे भी वहाँ पे थोड़ा फॉर्म इनफॉर्मल सा ही हो जाता है माहौल। जब मैंने भी दिया था एचएस का इंटरव्यू, तो बड़ा इनफॉर्मल सा ही माहौल था। तो वो मतलब थोड़ा अगर आप उनको थोड़ा स्टोरी करके सुनाओगे तो वो ज़्यादा इंजॉय होते हैं, है ना, वो ध्यान रखना। तो बाकी यूपीएससी को लेके वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ना, अच्छा क्योंकि सर। मेरा भी जब मेरा यूपीएससी का भी था उस साल इंटरव्यू, तो उन्होंने तो मेरी जान ही ले ली कि भाई आप यूपीएससी दे लो, फिर आप एचएस में क्यों आ रहे हो, हमारी सीट वेस्ट कर रहे हो, रिजर्व लिस्ट भी नहीं होती, आप यहाँ क्यों आ रहे हो। तो इसको अच्छे से कर लेना, है ना। तो वैसे तो यूपीएससी ना ही लिखते तो भी ठीक था यहाँ पे तो, बट चलो अब लिख दिया है तो उनको बोल दो कि सर दे रहे हैं बट एचएस हो जाएगा तो सर फिर नहीं देना, है ना, क्योंकि सर अपने अपने लोगों का काम कर पा रहे हैं, उससे ज्यादा सर क्या ही वो है। और फिर सर फिर ज्यादा काम को भी मद्देनजर रखते हुए हम लोग करेंगे, मत बोलना कि यूपीएससी दोबारा दे रहा हूँ, वो ऑफेंड हो जाते हैं। मतलब वो मेरे टाइम पे पता नहीं अब आजकल कौन है चेयरमैन, तो वो कैप्टन रामेश्वर होते थे, अभी भी वही हैं। वही है सर। तो वो हाँ जी उन्होंने सर। मेरे को वो कर दिया था, तो फिर ये ध्यान रखना थोड़ा बस। ठीक है, कि वो बोलेंगे तो बोलना कि नहीं सर अब हो गया, एचएस हो गया, तो सर फिर यहीं पे ही अड्डा जमा लेंगे, कोई बात नहीं। बोल सर फिर अगर उसके बाद लगा सर कि काम के साथ साथ टाइम बच रहा है और मेरे को लगा मैं और ज्यादा, तो फिर सर शायद मैं दे दूंगा जरूर, पर इमीडिएटली तो सर नहीं है प्लान। ठीक है। तो बाकी यार स्वां रिवर तो के बारे ये भी नेगेटिव पोर्ट्रे नहीं करेगा कि ये तो बस ग्रोथ ही नहीं करना चाह रहा है, आगे यही रुक जाएगा। नहीं, ग्रोथ क्या है बोलो सर, मेरे को तो लोगों के लिए काम ही करना है, उसमें ग्रोथ क्या है, सीनियर पोस्ट का मतलब ये थोड़ी और ज्यादा कि मैं वो कर रहा हूँ। वरना तो तहसीलदार के बाद भी बंदे पेपर ही देते रहेंगे, फिर तो एसडीएम के बाद फिर यूपीएससी का देते रहेंगे, आईआरएस बन गए, फिर आईपीएस, फिर आईएएस, फिर तो कभी कोई काम ही नहीं करेगा, है ना। तो उनको ठीक है है कि सर। आगे तो आप काम कर लो, है ना। उनको जरूर बोल देना कि सर दे सकता हूँ बाद में, प्लान करूंगा अगर, पर अभी तो सर मेरे को लगता है कि एचएस हो जाए, दैट्स ऑल राइट, है ना। ठीक है और सर। अगर अल्टरनेट पूछा है तो अपने उसको भी लेके चलना साथ साथ, जो आपने जैसे अपना जूलॉजी वगैरह आपने करा हुआ है ना, तो वो बोल देना कि सर मेरी ग्रेजुएशन से रिलेटेड था, तो फिर डेयरी में मेरे को वो भी हेल्प हो जाएगी, और थोड़ा और सोशल एंगल उसमें जोड़ दो कि किसानों को इकट्ठा वट्ठा करके सर कोई कोऑपरेटिव टाइप का करेंगे। और बोल देना कि सर वैसे भी मैं इनिशिएट सा कराया हूँ, लोगों से बात कर ली कि कोऑपरेटिव फार्मिंग तो वहाँ शुरू हो जानी चाहिए, या कोऑपरेटिव डेयरी का भी थोड़ा सोशल एंगल दिख जाएगा आपको, मतलब बैठे बिठाए एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी अपना वो दिखाने के लिए, है ना। पोयम रख लेना याद करके, एक सुनाने को बोल देंगे। है सर याद। दिया होगा तो यार, तभी नहीं मैंने पूछा, है ना। तो पता लगा सर मुझे। क्योंकि वो हो सकता है पूछ लें, कई बार उनका मूड होता है तो, हाँ बट जी हाँ जी सर। सो ये है। स्वां रिवर के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, उसकी पोल्यूशन के ऊपर सवाल पूछ सकते हैं, काफी ज्यादा जरूरी, है ना। शिमला में टूरिज्म का प्रेशर और वो मैग्नेट सिटीज वाला अच्छे से याद करा होता है, पर यार ऐसे बोल रहे हो जैसे पता है रट्टा मारा हुआ है, तो थोड़ा उसको उस हिसाब से नहीं बोलेंगे, है ना, क्योंकि वो ऐसा लग रहा था कि पूरा याद करा हुआ है, रिसाइट कर रहे हो वहां पे बैठ के, सर नंबर 2 दिस इज नंबर 3 दिस इज, इतना वो मत रखो, है ना। उसको थोड़ा रिलैक्स जाने दो, एक एक पॉइंट के बीच में गैप लो, उसको क्लियरली बता दो, है ना। तो एप्पल के यार इश्यूज पढ़ लेना, अभी फार्मर्स ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करे हुए थे, उनके और भी बहुत रीजंस थे। थोड़ा और साइंटिफिकली बताओ, ये नहीं बस कि मिडल मैन एक्सप्लॉइटेशन होती है, फार्मर्स को तो मिडल मैन चाहिए ही है आज की डेट में भी, है ना। तो फिर थोड़ा वो पढ़ो कि क्या क्या उसके एक्चुअल कारण है, क्योंकि वो जरूर आपसे पूछेंगे, है ना, आपके सारे उधर ही लिंक है। तो मेडिसिनल प्लांट्स हो सकता है, क्योंकि उन्ना में बहुत है। और एक मैंने वैसे इशू और पूछना था, मैंने पूछा नहीं था, मैं बता देता हूँ आपको। बताओ 2024 में कांग्रेस एमएलएज ने क्रॉस वोटिंग कर दी थी राज्यसभा में, है ना, ठीक है सर। अपने राज्यसभा इलेक्शन में। तो फिर उस केसेस में मतलब आपको देखना है कि एज अ ब्यूरोक्रेट, एचएएस ऑफिसर, आप उसको कैसे
उसको नज़र में देखते हो। तो मतलब वो पॉलिटिकल व्यूज भी आपके पूछ सकते हैं इंटरव्यू में, पर हमने न्यूट्रल ही रहना है पूरा। ठीक है, कोई भी सरकार का वो पूछे, अगर तो प्रेजेंट सरकार है या कोई पुरानी लेगेसी पॉलिसी है, तो पॉलिसी की तो हमेशा तारीफ ही करनी है कि नहीं नहीं सर ठीक है, पर उसके अंदर सर ये चेंजेस हो सकते हैं, है ना, पूरा वो रहना। और बाकी थोड़ा बस ये है कि अपना एक्सप्रेशन जो है वो थोड़ा सा बनाते रहा करो आंसर के साथ, थोड़ा है ना मॉड्यूलेट करो आवाज को ऊपर नीचे। वैसे तो अच्छा कर रहे हो, बहुत आता है आपको सारा, जो नॉलेज वाइज क्वेश्चंस है। बट ये है कि जो वो इंट्रोडक्टरी वाले क्वेश्चंस है ना, मेन वाई एच एस वाला, उसको यार थोड़ा अच्छे से पॉलिश करो। वो बहुत ही वेग लग रहा है कि मैं एम्पैथेटिक हूँ, मतलब ये तो नहीं बनेगी बात। ठीक है, उसको अच्छे से करो। बाकी तुम बताओ, कोई डाउट वाउट आ रहे हैं तो पूछो। सर केस स्टडी, सर जैसे केस स्टडी के लिए आता है कि अगर आप एसडीएम बन गए या ये, उस क्वेश्चन को सर किस तरह से। यार जैसे ये वाला भी था ना, फ्लड वाला, आपका आंसर तो अच्छा था, पर इमीडिएटली बोलो कि सर सबसे पहले तो हम लोग मतलब कमरे से बाहर निकलेंगे और सबको सबको अलर्ट करेंगे। आपने बोला मैं साइट पे कानूंगो को बुला लूंगा, वो फर्स्ट स्टेप नहीं है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम्स डिप्लॉय करना फर्स्ट स्टेप है ना। तो उस टाइम में बस थोड़ा सोचना। बाकी जो भी केस स्टडी वाले क्वेश्चन होते हैं ना, पहले सबसे पहले चाहे एक एक 10 2 3 सेकंड लगा लो, पर आपने सोल्यूशन हमेशा उसका एक मिडल पाथ सही देना है ना। वो मोस्टली करप्शन के पूछेंगे आपसे कि, पर उन क्वेश्चंस में मिडिल पाथ नहीं है। जहाँ पे करप्शन वाली एथिक्स आ गई है, कोई भी ऐसा है, अगर आपको बोल दे भाई आपकी तो घर पे बड़ी दिक्कत है, सारे लोग बीमार हैं, आपका हॉस्पिटल यही है ना, घर आप शिफ्ट करके अगर आपको कहीं और भेज दिया तो बच्चों की पढ़ाई हैम्पर हो जाएगी, सारी दिक्कतें बता देंगे। और फिर बोल देंगे पर आपको उधर से चुपचाप कहीं से आपको कोई दे दे रहा है इतने पैसे, और किसी को पता भी नहीं चलेगा, तो आप ऐसे में क्या करोगे। ये भी मत बोलना कि जी हम तो सबसे पहले उसको वापस करके आएंगे या पता नहीं क्या करेंगे। सीधा बोल दो कि सर ऐसी कोई नौबत आएगी नहीं, अगर मेरे ऊपर प्रेशर पड़ता भी है तो कोई बात नहीं सर, बदली हो जाए हो जाए। अगर मेरे को कोई थ्रेट टू लाइफ है तो उसमें बोल दो कि भाई सर पुलिस प्रोटेक्शन लेके भी जी लेंगे, है ना। तो हर चीज में उनमें बिल्कुल एथिकल स्टांस ले लो। जहाँ पे बोलें कि आपका सीनियर कोई करप्शन कर रहा है, आपको पता चल गया, अब आप क्या करोगे, तो उसमें ये मत बोलना कि भाई हम लोग सीनियर से जाके, चलो करनी भी है एक बार जाके बात कर लेना, बट बेस्ट होता है इसमें कि बोल दो सर हम किसी एनजीओ या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को लीक करा देंगे, है ना, क्योंकि उससे लीक करा देंगे सर। लीक करा देंगे उसके जो करप्शन का रिकॉर्ड है सीनियर का। सर ये फिर वो हायरार्की भी बोलते हैं, जो हायरार्की के अगेंस्ट। हायरार्की के अगेंस्ट क्यों, आप अगर मान लो कि आप जूनियर इंजीनियर हो, ठीक है, और सीनियर इंजीनियर कुछ घपला कर रहा है, आपको पता चल गया, तो अब आप उसमें हियरार्की को नहीं कर रहे आपको, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि आपने इन्फॉर्मेशन लीक कराई है, तो आपको तो जॉब से निकाल देंगे। जी सर। तो आप प्रैक्टिकली भी तो अपना देख के चलोगे ना, कि इतना भी उसमें एथिकल नहीं होना कि भाई मैं तो जाके सीनियर के सीनियर को जाके कंप्लेंट कर दूंगा, क्या पता सीनियर का सीनियर भी मिला हो और दोनों मिलके आपको निकाल दे, करप्शन भी ना बाहर निकले, है ना। तो आप वो भी नहीं कर सकते, तो ऐसे में सेफेस्ट है कि आप बोल दो कि, कई लोग ये भी कहते हैं कि जाके भी पहले मैंने बात कर ली सीनियर इंजीनियर से कि भाई आप गलत कर रहे हो मत करो, बट आप वो करोगे तो उसको पता चल जाएगा, आपको पता है वो आपको निकाल देगा। तो इसमें बेस्ट है कि कोई जो एनजीओ है उसको बोल दो कि भाई ऐसे करके करप्शन हुई है, या किसी मीडिया की टीम को बोल दो कि भाई ऐसे करके उसने करप्शन करी है, इन्वेस्टिगेट कर लो, तो वो कर लें। मतलब वो भी अगर आप पकड़वाना चाहते हो, मतलब वो तो आप चाहोगे इंटरव्यू में कि पकड़वाना है, तो बोल दो सर, करने को तो सीधा भी कर सकते हैं कि सीनियर को जाके बोल दिया, बट सर कई बार सीनियर का भी नहीं हमें भरोसा है कि नहीं है, तो सर इसलिए मीडिया के थ्रू सर हम लोग करवा सकते हैं या सिविल सोसाइटी, मतलब कर देना। उनको ऑप्शन है कि ये वाली जरूर खुली देना कि भाई ये वाला हम लोग जाएंगे, ताकि सर मेरी भी जॉब खतरे में ना आए अगर मेरे पे ऊपर कुछ प्रेशर है तो, सर। है ना। तो और भी केस स्टडीज आती हैं, बेस्ट है याद कर लेना कि भाई हिमाचल की 3 बड़े चैलेंजेस, और जब यार चैलेंजेस बताते हो साथ में सोल्यूशन भी बता दिया करो। साथ ही में सर साथ ही, पूछने का वेट नहीं करना सर। what are the challenges यार in the Apple field, बोल दो सर the challenges are कि exploitation by middleman occurs, but sir this could be done if we improve our infrastructure and we do this। फिर सर secondly it also faces the problem of drug abuse, जैसे अगर कोई चीज़ है सर, which I think can be resolved with the help of opening up more rehabilitation centers, है ना, as well as sir educating the youth and providing gainful employment opportunities। सर the third point is ताकि वो सिर्फ ये ना सोचे कि आप challenges है, वो ये सोचे कि आप solution भी साथ साथ सोचो चीज़ों का। अगर टोक दे कि भाई मत बोलो सॉल्यूशंस या चैलेंजेस ही, क्योंकि कोई भी आपसे चैलेंजेस पूछ रहा है वो सॉल्यूशन सुनने के लिए ही पूछ रहा है ना। हो सकता है वो चैलेंजेस के बाद बोले चलो ठीक है नेक्स्ट यार, तो चैलेंजेस भी के साथ सॉल्यूशन दोगे, आपका आंसर बड़ा भी लगेगा, थोड़े फैक्ट भी ज्यादा आएंगे,
क्योंकि चैलेंज के साथ आप कोई करंट अफेयर वाली स्कीम डाल दोगे तो वो आपकी नॉलेज को भी और दिखाएगा, है ना। सर टू रेक्टिफाई इट हिमाचल गवर्नमेंट पास दिस एक्ट फॉर दिस, ये अगली अगला पॉइंट फिर चैलेंज का। तो वो अच्छा रहता है एक तरीका, है ना। और पूछो कोई डाउट रोहित। सर एक लोकल इशू जैसे एक क्वेश्चन है कि एससी रिजर्वेशन है लेकिन पॉलिसी पे सिर्फ सीट्स फिल्ड हो रही है लेकिन पॉलिसी मेकिंग में उनका वो नहीं आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से सर आंसर किया जाए कि सिर्फ नहीं, रिजर्वेशन से सिर्फ सीट्स फिल हो रही है। क्यों नहीं आ रहा है, पहले इसका क्या आंसर है। सर अब इसका रीजन यही है कि उनके पास एक शायद कैपेसिटी बिल्डिंग उस तरह की नहीं है, या वो उस तरह से उस चीज को लीड नहीं कर पा रहे, लीडरशिप रोल में नहीं पा रहे क्योंकि लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है, डेवलप नहीं हो पाई है रिजर्वेशन के बिहाइंड सर शायद मे बी सर। सर आप इस पे कुछ। सर सोल्यूशन तो यार आपने कुछ भी नहीं देना, ये तो जैसा है वैसे ही, अब ना रिजर्वेशन बढ़ा सकते हैं ना रिजर्वेशन घटा सकते हैं, रिजर्वेशन को वहीं चलने दो, है ना। बोलो कि सर ये जरूर हो सकता है कि जैसे ये जो इशू है वो जो मीडिया हाईलाइट में आ रहा है, लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं इस इशू को, सर धीरे धीरे करके मुझे लगता है परकोलेट करके अपने आप सर ऐसे जो पॉपुलेस है उनके फेवर में जो है वो चीज़ें आ जाएंगी धीरे धीरे करके। इसमें कोई रेडिकल सोल्यूशन मत देना कि भाई इनको लीडरशिप देनी है या कुछ प्रधानी बनानी है, क्योंकि वो सारा कुछ तो जो पॉलिटिक्स में चल रहा है, या सीट्स में भी हम लोग कोई भी कभी यूनियनाइजेशन नहीं ना कर सकते, है हाँ ना। जी तो अब सर। रिजर्वेशन का प्रोसेस जो है सर बिल्कुल फेयर है, जो कि डिसएडवांटेज है जैसे हमें दिख ही रहा है। तो सर आई थिंक इट विल टेक टाइम, विद टाइम सर, जैसे जैसे न्यूअर जनरेशन आ रही हैं और अब सबको सर एजुकेशन का एक्सेस ज़्यादा मिलता जा रहा है, उस तरह से सर हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में एजुकेशन और अवेयरनेस फैल जाएगी। और जब वो वाले लोग सर सर्विस में आने लग जाएंगे तो अपने आप सर इम्प्रूवमेंट भी दिखने लग जाएगी। इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस, है ना। और फिर उसमें बोल दो सर एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल भी एससी पॉपुलेशन से रिलेटेड हमें कोई भी स्कीम नहीं मिलती। दो तीन स्कीम्स आप बता दो जो एससी पॉपुलेशन से रिलेटेड आई होंगी, कुछ तो आया ही होगा बेटरमेंट के लिए, है ना। हाँ तो जी आप सर। बोल देना कि सर एक फैक्टर ये जरूर है जो टाइम से ठीक हो जाएगा, एंड एट द सेम टाइम सर ये दो तीन स्कीम्स भी ले आई हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल ही उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही है ना। दोनों तरफ रख देना, पर जो मेन ठीक है इश्यूज सर। को छेड़ना ही मत कि भाई रिजर्वेशन बढ़ानी घटानी है, आप उस पर ओपिनियन नहीं देना, इधर इधर को डाइवर्ट करते रहना उसमें। ओके सर। और बताओ कोई क्वेश्चन है तो। फिलहाल तो इतना ही आ रहा है। कोई बात नहीं रोहित, बाकी मेरे को कभी अलग से कांटेक्ट भी कर लेना, कभी कोई इशू आता है तो। डोंट वरी, डेट आ गई इंटरव्यू की। यस सर। अब है 26 दिसंबर। 26 दिसंबर। चलो है आपके पास अभी 10-11 दिन, है ना। अपने हाँ जी करंट सर। ब्रशअप कर लेना, जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स हैं थोड़ा जूलॉजी वगैरह भी देख लेना, एक बार कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं। और अपने जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको अच्छे से कर लेना। ओके सर। कॉन्फिडेंस रखना, थोड़ी सी स्माइल मेंटेन करना, और अपना इंटरव्यू बढ़िया से दे दो। अच्छा, एक और भी कि आई टू आई कांटेक्ट बोलते सबके साथ रखना है कि सर सिर्फ जिससे कांटेक्ट हो रहा है बात हो रही है। जिसने जैसे अगर मैंने आपसे क्वेश्चन, मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा तो पहले मैं उनको तो देख ही रहा हूँ, आंसर देते हुए मैं सबको देखने लग गया हूँ, ठीक है। हर तरफ कि एक पॉइंट बता दिया, ऐसे दूसरा बताते बताते इधर को हो गए, फिर तीसरे पे आ गए, और फिर बीच वाले से फिर बात करने लग गए, तो ऐसे ठीक रहता ओके सर। है ना। और उसमें बड़ा बड़ा भारी हॉल है वो, मतलब इधर तक गर्दन घुमानी पड़ती है और इधर तक पूरे कोने तक बैठे होते खुले खुले वो, है ना। तो वो पूरा ऐसे डोम की तरह, तो थोड़ा सा देखना कि सबको देखना पड़ता है बारी बारी करके, है ना। वहाँ पे ओके सर। इंट्रोडक्शन आपसे नहीं पूछेंगे तो मत देना खुद से, कई बार नहीं भी पूछते हैं क्योंकि वो डैफ पढ़ते हैं जोर से, तो वो बोलेंगे ही नहीं कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, पर कर भी सकते हैं, तो इंट्रोडक्शन भी अपनी तैयार करके रख लेना अगर पूछते हैं तो, ओके है ना। बाकी बेसिक चीज़ों का तो ध्यान रखना ही, अंदर घुसते हुए मे आई कम इन पूछ लेना, सीट पे परमिशन लेके बैठना, हाथ अपने यहाँ पे पैर पे रखना, थाई के ऊपर, है ना। और इंटरव्यू अपना हाथ की मूवमेंट हल्की हल्की करते हुए दे देना। ओके सर। वैसे अगर टाइम है आपके पास पोइंग से आप मैं पोइंग बोलता हूँ जो मैंने लिखी है वहाँ के लिए, तो अगर उस पे आपको कुछ क्वेश्चंस लगते हैं कि उससे भी ड्राइव हो सकते हैं अगर हाँ, आपके पास टाइम है। बोलो बोलो बोलो। सर ऐसा है कि सत्ता पर उठते सवाल यह हर दौर की कहानी है, मगर सरकार बिना ना रोटी ना पानी है। प्रशासन में गड़बड़ियां यह भी कोई नई बात नहीं, मगर आपदा में वही आगे जब उम्मीदें साथ नहीं। कोर्ट में देरी सही मगर न्याय की लौ बुझी नहीं, कानून की छांव तले ही हर उम्मीद सजी रही। शिकायतें हैं सुधार भी है, यह लोकतंत्र की रवानी है।
यहाँ हर वोट हर आवाज से चलती इस देश की ये नायाब कहानी है। बढ़िया है यार रोहित, सही है ना कि ये- ये भी है कि चलो पॉजिटिव भी आ रहा है लाइट में बाहर, है ना कि अगर कुछ नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है। बिल्कुल बढ़िया है, एक न्यूट्रल पोएम है, सही है रोहित, ये जरूर मौका मिले तो बोल देना। है ना, वो अच्छा। बड़ा खुश होते हैं इन चीज़ों पे, अगर वो बोल लेना कोई हिंदी पोइट्री भी बोल दिया, जैसे मैंने बोला आप हिंदी पोइट्री, आप पोइट्री करते हैं, तो आप उसमें ही बोल देना कि सर अगर आप चाहो तो मैं एक सुना दूं, ऐसे करके। अच्छा सर। सर आई कैन रिसाइट ऑल्सो इफ यू वुड लाइक टू हेयर अ पोएम दैट आई हैड रिटन। वो बोलेंगे हाँ हाँ प्लीज यार रोहित सुना दो। वो मना नहीं करेंगे कभी भी कि अगर बंदे ने खुद ही पूछ लिया तो। ना देख लेना मौका देख के, पर जबरदस्ती फोर्स मत करना। अगर बात आई गई पोएट्री की तो फिर खुद ही बोल देना। अगर वो पूछे भाई किस किस चीज पे लिखते हो, सर मैं सोशल इश्यूज पे ऐसे ऐसे लिखता हूँ जैसे मैंने पूछा था, तो उसे बोल देना कि सर इसी पे एक है मेरे पास पोएम भी, मैंने छोटी सी बनाई हुई है, इन केस यू वुड वांट टू हेयर। तो फिर खुद ही मेंशन कर देना इसमें। अच्छा तो सर इस पे क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम, मतलब मैंने कुछ तो सोचा है बट इसमें केस स्टडी भी कुछ ऐसे, जैसे करप्शन का मैंने बोला है कि प्रशासन में गड़बड़ियां भी, यह कोई नई बात नहीं, तो इस पे कुछ केस स्टडी सर किस तरह से, एक तो आपने वही बोली जूनियर इंजीनियर वाली। तो इशू ये लगा था कि आपने बोला कोई नई बात नहीं, तो मतलब वो ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है कि ये तो एक बहुत प्रिवेलिंग प्रैक्टिस है और वो चलता ही है ये तो भाई, है ना। बट जबकि आपको तो बिल्कुल ही वहां पे तो ऐसे शो करना है कि ये तो बिल्कुल ही नहीं चलता, ऑल्दो होता है जरूर, है ना। तो इस लाइन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना, या लोग ओके कहते सर। हैं ऐसे करके। बट एनीवेज अगर आपसे पूछेंगे भी कि भाई आप कैसे करोगे, तो बोलना कि सर बिल्कुल ही अगर हम लोग नहीं लेंगे, और जो भी सारे एक्ट्स है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट करेंगे, लोकपाल को अच्छे से करेंगे, लोक आयुक्त ढंग से चेक करेंगे, है ना सर, और अपनी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर हम लोग सारे ढंग से करेंगे सर, तो करप्शन ऑटोमेटिकली वीड आउट हो जाएगी। और फिर बोलेंगे भाई बड़ा प्रेशर डालेंगे आप पे करप्शन करने के लिए ये वो, तो बोलो सर कोई बात नहीं, कहीं और बदली खा लेंगे, कोई बात नहीं सर, ओके सर। है ना। थैंक यू सर। बाकी रोहित, कोई भी इशू हो मुझे बताना, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय। बाय सर, गुड नाइट सर।